like cattle, the president's speech. And as my friend Kalyan Banerjee mentions, the railway minister is starting new trains, but the food in Rajdhani is getting worse and worse. But yesterday, you are on the top. Yesterday he You are had made an building announcement a railway to Jammu Vande Bharat Kashmir. also Good thing. no. But what about the trains that are there? They are in a horrible condition. You don't get a time to take trains these days. Roof is To leaking. Domdia Ganj, you go by train or by car. Ministers don't travel in train. हवाई जहाज से जाते हैं। Chartered plane. अब तो कुशीनगर में ट्रेन चाहते, हवाई जहाज चाहते थे, उड़ान बोलता है। अरे उड़ान कौन चढ़ेगा? लोगों का पैसा नहीं है गांव में, और आप बोलते हैं उड़ान हम एक्सटेंड करेंगे कुशीनगर में। कुशीनगर इज अ पार्ट ऑफ बुद्धिस्ट सर्किट। ये सब वेयर ऑल ओवर बोगस वर्ल्ड ड्रीमिंग है। पिलग्रिम्स दे सर, I want to say, your president suddenly mentioned that 125th anniversary of Shyama Prasad Mukherjee is being celebrated. I may mention that Shyama Prasad, I come from the area where Shyama Prasad lived. He's not worshipped in Bengal. Yes. Because he never went to jail during the British period. He led a ministry called Shyama Haq Ministry in Bengal. So you may worship him. You may worship Savarkar, the president may. We won't worship them because they compromised with the British. And this is the basic difference between you and us. Sir, I've heard that in education we have made progress. Sir, do you know that there is not a single Indian university in the first 200 universities of the Shame. world? Not one in the first 200, Oxford, Cambridge, Harvard, MIT, like that. Chinese universities are there, Singapore universities are there, Australian universities are there. Not one university among the top universities. Huh? Kindly conclude. Kindly conclude. Sir, I'll now slowly wind up. Sir, basically, the president's government is a government which uses communalism to further its political end. Shame. It's a government which compromises with the monopoly without looking into the well-being of the people. That's why I cannot support this speech. I am told that spreading hatred. it's only spreading hatred. He is Differences. capable to speak. We cannot tolerate I think so. He's a I am professor. told that the Prime Minister is going to He is US. prompting you. I request him to act like not like the Mexican president. At least persuade Trump to not to increase Indian tariffs. Now kindly You know, conclude. sir, Please kindly on the budget day, Good. our stock markets did not move because they did not rise Dada, because kindly they are all conclude. looking at what Trump does. Kindly With conclude. this, sir, Kindly conclude. I oppose the president's speech and I support by amendments. Thanks. सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि जो भी माननीय सदस्य अपना भाषण लिखित देना चाहते हैं वो सदन पटल पर रख सकते हैं। जो अपना भाषण में भाग नहीं लेंगे, अगर वो लिखित देना चाहते हैं तो दे कैन ले ऑन द टेबल इन रिटन स्पीच। श्री पीबी मिथुन रेड्डी जी। Very good, Dada. श्री पीबी मिथुन रेड्डी जी। Thank you, sir, for letting me talk on the motion of thanks to the President address. I would like to raise a very important issue concerning my state, Andhra Pradesh. Sir, during the partition of the state and in the AP Reorganization Act, Polavaram project has been promised to us as a national project. So originally, the project was designed at 194 TMC and it was designed to cater to 7.2 lakh acres
of for irrigation and also drinking water needs, sir. But in the recent budget speech, we have seen that the project has been, the storage has been restricted to 41.15 MDDL drawdown level, which means that the capacity of Polavaram project will reduce from 194 TMC to 115 TMC, sir. This is a big setback for our farmers, big setback for our state, and we demand that the Polavaram project should be constructed as promised by the central government, as given in the AP Reorganization Act. It should not be reduced in capacity, sir. It's a big hit. The capacity, if it is reduced to 115 TMC, it's going to cater to only 3.2 lakh acres of irrigation against 7.2 lakh acres which has been promised, sir. This is a big setback, and I really urge even the Telugudesam MPs, we are ready to work together on this, sir. The people of Andhra Pradesh will not forgive us if this is going to be implemented in the state. And we also want to know, sir, that recently the NDA government in Andhra Pradesh, Telugudesam party, has announced that water will be diverted from Polavaram project for Banakacharla project and give water to Rayalaseema areas. How is it possible when the capacity of the project is being reduced, sir? And in the budget speech, the revised cost has also for 41.15 MDDL has been reduced to 30,496 crores, and the balance grant is only 12,157. So this is a serious setback, sir. One way there is no, the promise of special category status has gone back, and now even Polavaram project, instead of constructing it fully, now it is being reduced in size, and which reduced in capacity, which is totally against our state and interest of our people, sir. We demand that the original Polavaram project capacity should be maintained, and we are not going to budge on this. And the second important thing, sir. Sir, any government, power is not eternal, governments come and go, but the policies should remain the same, sir. For example, our former Chief Minister introduced English medium in government schools, sir. He introduced the CBSE syllabus. English medium means the government, all the government schools had a page of the same syllabus in English and one side in Telugu, sir. So earlier it was Telugu medium in all the government schools. With English medium, they had great opportunity and they could go anywhere in the world to study also, sir. And CBSE made them competitive throughout the countries. But the recent developments in our state, lot of people, there is thing that English medium is being discontinued. ये जो लोग चाहते हैं कि वो तेलुगु भाषा में अपनी पढ़ाई करे सरकारी विद्यालयों में, तो वो उनके बच्चे जो हैं प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, अंग्रेजी माध्यम में पढ़ते हैं। मैं अपनी मातृभाषा को पसंद करता हूँ, मैं अंग्रेजी माध्यम से पढ़ा हूँ और तेलुगु भी पढ़ा हूँ महोदय। उसी बात को हमारी सरकार ने जो है वहाँ पे लागू किया था गरीब छात्रों के लिए। हम मांग करते हैं कि एनडीए सरकार जो है फिर से अंग्रेजी माध्यम को बंद न करे, उसी में पढ़ाई शुरू करे और साथ साथ तेलुगु को पढ़ाया जाए। जो भी भारतीय बाहर काम कर रहे हैं, जो इंडियन डायस्पोरा से जुड़े हैं, वो उनके पास जो है एक अच्छी अंग्रेजी की जानकारी होती है, जिसके कारण हम आगे बढ़ पाते हैं। और जो तेलुगु माध्यम में भी छात्र पढ़ रहे हैं, वो भी जब बाहर जाते हैं और एमएनसी से जब उनकी बातचीत होती है तो उनके जो भविष्य होता है वो प्रभावित होता है। हम विशेषकर जो गरीब बच्चे हैं, उनके जो गरीब लोग हैं, उनके बच्चे का भविष्य प्रभावित होता है। पूरी तरह से हम स्वीकार नहीं कर सकते इसको। और जो तेलुगु के साथ साथ अंग्रेजी माध्यम में भी पढ़ाई होनी चाहिए महोदय। और ये सरकारी विद्यालयों के लिए आदेश जारी किया गया महोदय। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप कृपया जो है कल्पना कीजिए कि इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव कितना पड़ेगा उन गरीब बच्चों पे जो अपने समकक्ष के बराबर नहीं हो पाएंगे, जो अंग्रेजी माध्यमों से पढ़ रहे हैं या अन्य विद्यालयों में पढ़ रहे हैं। एक और अन्य बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा महोदय, जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ। एक सबसे बड़ा घोटाला जो है अभी संयुक्त आंध्र प्रदेश में हुआ था, मार्गदर्शी चिट्स। उसने जो है 2600 करोड़ से ज़्यादा राशि एकत्रित की आरबीआई के मापदंडों के विरुद्ध जाकर। उन्होंने उस राशि को अन्य कंपनियों में भेज दिया। ये भी पूरे नियमों के खिलाफ था। और यदि किसी ने उनसे पूछा किया तो उनके मीडिया हाउस हैं और उन्होंने उन लोगों को लक्षित करके समाचार छापे। तो ये बहुत बड़ा घोटाला है, सहारा से बड़ा घोटाला है, शारदा चिट फंड घोटाले से भी बड़ा घोटाला है,
लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आईटी विभाग ने भी उसमें चूक का पता लगाया है और मार्गदर्शी पर उन्होंने जो है शास्ति लगाई है, दंड लगाया है। लेकिन महोदय, हम इसकी मांग करते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए और उचित तरीके से जो है न्याय किया जाना चाहिए, क्योंकि लाखों लोगों का पैसा इसमें निवेश किया गया है। जहाँ कहीं भी शिकायतें प्राप्त हो रही है कि जिसने भी अपने पैसे को यहाँ जमा किया है उनको पैसा वापस नहीं मिल रहा है और वो लक्षित कर रहे हैं, मीडिया हाउस उनके पास है, वो लोगों को परेशान कर रहे हैं। एक केस स्टडी किया जा सकता है महोदय कि किस प्रकार से उन्होंने न्यायपालिका को प्रभावित किया, न्यायपालिका से बच गए, पुलिस को से बचते चले गए, किसी को ईडी बुला देती है, कोई भी छोटा होता है या गंभीर अपराध होता है तो ईडी बुलाती है। तो जहाँ पे हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हो गया लेकिन ना कोई सीरियस फ्रॉड विभाग उनको बुला रहा है या ईडी बुला रही है, तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को इसको नोट करना चाहिए और गंभीर कार्रवाई करनी चाहिए इस पे। एक अन्य बात है जिसके बारे में हम चाहेंगे कि सरकार को काम करना चाहिए, एक तो है कि क्या आप हमारे राज्य में विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र का निजीकरण करने जा रहे हैं। हम मांग करते हैं कि विशाखापट्टनम के इस्पात संयंत्र का निजीकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने इस संयंत्र को चलाने के लिए पैसा दिया है। ये संयंत्र अगर चलेगा तो हमारे लिए अच्छा होगा, लेकिन अगर कोई भी प्रयास किया जाएगा विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र को निजीकरण करने का तो हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उन्होंने जिंदल ग्रुप से बात की थी और उन्होंने कहा था कि वो एनडीए सरकार से बात करेंगे और उन्होंने कहा था कि वो वहाँ पर इस्पात संयंत्र लगाएंगे। एक अन्य बात जो है महोदय, जैसा कि दादा ने भी हमारे इस बारे में बात किया गया कि आज जो है ड्रग्स जो है एक बहुत बड़े पैमाने पे फैल रहा अपराध है और इस पे तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जितने अभिभावक हैं उनको समझ में नहीं आता कि उनके बच्चे ड्रग्स के प्रभाव में हैं या नहीं हैं। यदि जब तक उनको पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो हम यह मांग करेंगे कि सरकार किसी तंत्र को लेकर जहाँ पे सभी बच्चों की जांच होनी चाहिए और यदि किसी का भी पता लगता है कि उस पर ड्रग्स का कोई प्रभाव है या ड्रग्स ले रहा है तो पूरे भारत का जो भविष्य है वो दांव पे लगा हुआ है। तो हम चाहेंगे कि इस पे गंभीरता से कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए। माइक You start, mic will be automatically. थैंक यू। आप बोलना शुरू कीजिए, माइक चालू हो जाएगा। सभापति महोदय, आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। मैं महामहिम राष्ट्रपति जी को संयुक्त सत्र को संबोधित करने के लिए संपूर्ण भारत के नागरिकों के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। महोदय, 75 वर्ष के गणतंत्र में हमारे देश की खूबसूरती ये रही है कि हर व्यक्ति का ख्याल रखा गया। अभी कल मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष का, आज भी एक सपा के नेता का, सबका भाषण सुन रहा था। सभी बात कर रहे थे पिछड़ों की, अनुसूचित जाति की, दलितों की, अनुसूचित जनजाति की, महिलाओं की। देखिए अध्यक्ष महोदय, इस देश की सबसे बड़ी खूबसूरती और संविधान की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि भारत के पूर्वी तट की एक लिपिक आदिवासी महिला आज इस देश की राष्ट्रपति है और भारत के पश्चिम तट का एक चाय बेचने वाले का अति पिछड़ा का बेटा आज प्रधानमंत्री है और यह केवल और केवल संविधान के कारण ही संभव हो सका है। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी के जो भी स्पीच होते हैं वह एक तरह से सरकार के किए गए कार्य और किए जाने वाले कार्यों का दस्तावेज होता है। वह बताती है कि सरकार क्या कर रही है। आज किसी ने भी जो सरकार के कार्य हैं उन पर टिप्पणी हमारे नेता प्रतिपक्ष नहीं कर सके। उन्होंने खुद माना कि 50 से 100 योजनाएं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में है। तो मैं उनका इस बात के लिए तो शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने खुद माना कि 100 नई विकास की योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश को दिया है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, जब उन्होंने कोई कमी राष्ट्रपति के अभिभाषण में नहीं देख सका तो उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति पर उनके और उनके परिवार ने व्यक्तिगत टिप्पणी की है जो बहुत ही अशोभनीय है और
पूरे सदन को उनकी निंदा करनी चाहिए। किसी को भी महामहिम राष्ट्रपति के ऊपर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। वैसे ही उन्होंने अपने भाषण में सेना के बारे में बोल के गुमराह किया। मुझे उम्मीद है कि इनके तरफ से जवाब आना चाहिए कि और वो टेबल करें। कल बात माननीय निशिकांत जी ने जो रखी थी, ये टेबल करें कि इसके बारे में सबूत क्या। सब लोग ऐसे ही बोलते हैं। और एक कल उन्होंने एक और बात कही कि तेलंगाना में जातीय जनगणना हुई है। सभापति महोदय, अगर तेलंगाना में जातीय जनगणना हुई है और बहुत पिछड़े उनको मिले हैं, अनुसूचित जाति मिली है, तो क्यों नहीं वो एक पिछड़े को मुख्यमंत्री बनाते हैं? क्यों आज भी सवर्ण वहां पे मुख्यमंत्री है? क्यों आज भी तेलंगाना में 80% सवर्ण मंत्री हैं? इसका भी जवाब इन लोगों को देना चाहिए। इतना ही नहीं अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, वो जब गए बिहार गए थे अभी 15 दिन पहले मुझसे पूछा गया कि भाई नेता प्रतिपक्ष बिहार आ रहे हैं, तो मैंने यही कहा था कि भाई वो हमारे स्टार प्रचारक हैं, आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ जरूर हमारा प्रचार करके जाएंगे। और उन्होंने जो वहां भाषण दिया तो कहा कि बिहार की जातीय जनगणना बिल्कुल फेक है। अब ये उनके कांग्रेस के मंत्री उस समय सरकार में थे, राष्ट्रीय जनता दल का नेता उस समय उप मुख्यमंत्री था, तो अगर यह फेक है तो उनके कहने का तात्पर्य यही था कि कांग्रेस और राजद जहां भी रहती है वह घोटाले ही करती है, और इसीलिए उन्होंने जातीय जनगणना को फेक बताया। लेकिन वो भूल गए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार जी के रहते कोई घोटाला नहीं हो सकता। इनके 1.5 साल के घोटालों से ही त्रस्त होकर माननीय मुख्यमंत्री पुनः एनडीए में शामिल हो गए। लेकिन इनको अवश्य बताना चाहिए कि कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री और राजद के मंत्री किस तरह से जातीय जनगणना को फेक या घोटाले वो कर रहे थे, यह जरूर बताना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, उसी तरह से यह कोई नई बात नहीं है। इनके द्वारा हमेशा एक तरह का गलत प्रचार, दुष्प्रचार, संविधान को रोकने की कोशिश, अनुसूचित जाति को रोकने की कोशिश सदैव से कांग्रेस के द्वारा हुई है। इनके परनाना जब माननीय प्रधानमंत्री थे, इन्होंने जो संविधान के रचयिता थे बाबा साहेब, उनको भी इस संविधान में संविधान की शपथ लेने इस संसद में आने नहीं दिया। हर बार षड्यंत्र करके उनको सदन में रोका गया कि बाबा साहब के द्वारा रचित संविधान से पर खुद बाबा साहब शपथ नहीं ले सके। इसकी पूरी साजिश इन लोगों ने किया था। इतना ही नहीं, कोई बात नहीं है सभापति महोदय, इतना ही नहीं, संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर प्रसाद, 2 बार इस देश के राष्ट्रपति रहे। लेकिन उनको, क्योंकि उन्होंने सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया था, तो जब उन्होंने राष्ट्रपति पद छोड़ा तो उनको सदाकत आश्रम के 2 टूटे फूटे कमरे में रख दिया गया। और आज भी जब नेता प्रतिपक्ष सदाकत आश्रम गए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को श्रद्धांजलि के लिए एक शब्द का भी प्रयोग उन्होंने पटना में नहीं किया। और ये केवल दूसरों के लिए नहीं है, इनके अपने बुजुर्गों के लिए भी यही हाल है। मैं बताना चाहूंगा कि जो माननीय पूर्व सांसद थे फिरोज जहांगीर घंटी जी, जिन्होंने बाद में अपना नाम फिरोज गांधी रख लिया था, पर उनका ओरिजिनल नाम फिरोज जहांगीर घंटी ही था। उनको भी उचित सम्मान कभी कांग्रेस ने नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने नेहरू जी के समय में मुद्रा घोटाले का ये किया था, निकाला था। और ये कोई पसंद नहीं है कि मुद्रा घोटाले के निकलने के कारण माननीय प्रधानमंत्री जी की बदनामी हुई थी। इसलिए आज तक फिरोज जहांगीर घंटी जी को कोई सम्मान नहीं मिला। यह अलग बात है कि उन्होंने जो नाम अपना फिरोज गांधी रख लिया, तो आज भी परिवार का सदस्य किसी भी से भी शादी करे अपना टाइटल गांधी ही लगाता है। लेकिन अध्यक्ष सभापति महोदय, धनुष उठा लेने से कोई श्री राम नहीं बन जाता, बांसुरी बजाने से कोई घनश्याम नहीं बन जाता, बाल बढ़ाने से कोई कलाम नहीं बन जाता, और गांधी सरनेम रखने से कोई महान नहीं बन जाता। और महान बनने के लिए महात्मा गांधी जी जैसे और नरेंद्र मोदी जी जैसे कर्म करने पड़ते हैं। आज यह माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्य है कि हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने जा रहे हैं। यह उनकी सोच थी कि कैसे हम आगे बढ़ें। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस देश का शासन छोड़ा तो भारत 11वें पायदान पे था। लेकिन जब 10 साल बाद कांग्रेस ने शासन छोड़ा तो भी भारत 11वें पायदान पे था, एक पायदान की भी तरक्की नहीं कर सके। लेकिन यह प्रधानमंत्री जी की देन है कि आज भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने जा रही है, क्योंकि इनका तो एक ही काम था
3 साल किसी तरह घोटाले करो, चौथा साल कुछ लोक कल्याणकारी योजना लाओ, 5वां साल को मुफ्त में बांट दो और सरकार जीत के फिर 3 साल घोटाले करो। इससे ज्यादा कांग्रेस ने कभी सोचा ही नहीं है। आज 3 करोड़ परिवारों को नया घर, 2 करोड़ 25 लाख परिवारों को संपत्ति कार्ड, 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी रेखा से ऊपर निकालना जैसे कार्य करके प्रधानमंत्री जी ने प्रत्येक नागरिक को एक सम्मानपूर्वक जीवन दिया है। हाँ, देश की राजधानी दिल्ली में आपदा की सरकार होने से जरूर दिक्कत है, लेकिन मैं पूरा विश्वास दिल्ली के नागरिकों को दिलाता हूं कि 8 फरवरी को दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार बनेगी और हर गरीब के, दिल्ली के भी हर गरीब के मकान के सपने को सच होगा। क्योंकि यह मोदी जी हैं कि वह कहते हैं कि हम वादे नहीं हकीकत बुनते हैं और इसीलिए देश की जनता सदैव मोदी को चुनती है। आज से 7 वर्ष पहले जिनेवा में इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन में एक सांसद की हैसियत से मुझे पूरे जनरल असेंबली में बोलने का मौका मिला था और वह मौका सिर्फ इसलिए मिला था कि पूरे दुनिया भर के सांसद इस बात पर आश्चर्यचकित थे कि जीडीपी में जिसकी इतना कम, प्रति व्यक्ति आमदनी में जो देश इतना कम है, वह कैसे 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत से मुफ्त चिकित्सा का लाभ दे रहा है। और हर सांसद ने पूरा का पूरा ध्यान से सुना कि कैसे इसको अच्छे से आयुष्मान भारत योजना लागू की गई। आज तीसरे कार्यकाल में 70 वर्ष के प्रत्येक बुजुर्ग को आयुष्मान योजना का लाभ देके माननीय प्रधानमंत्री जी ने बुजुर्गों के स्वाभिमान को संरक्षित करने का काम किया है। भारत में अनेक बुजुर्ग हैं जो अपने बच्चों को अपनी बीमारी इसलिए नहीं बताते थे कि हम इस उम्र में अपने बच्चों पर भार नहीं दें, और मोदी जी ने साफ संदेश दिया कि आप अपने इलाज की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, अपना इलाज करवाइए। आपके लिए आपके परिवार का एक सदस्य नरेंद्र मोदी सदैव तैयार है आपके सारे बीमारियों की चिंता करने के लिए। आज जन औषधि केंद्र के माध्यम से 80% रियायत में दवाइयां मिल रही हैं और इस देश की जनता का 30,000 करोड़ रुपया केवल इलाज में बचने का काम किया। जहां तक महिलाओं की बात करें तो नारी वंदन के माध्यम से लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा है और केवल लक्ष्य नहीं रखा, अभी तक हम 1 करोड़ 15 लाख बहनों को लखपति दीदी बना भी चुके हैं। आज हमारी बहनें चाहे निचले स्तर पर बकरी मुर्गी पालन से लेकर के लड़ाकू विमान चलाने तक का कार्य इस देश की हमारी बहनें कर रही हैं। और कोई ऐसा एनडीए जैसे जगह पे जो पहले महिलाओं की एंट्री नहीं होती थी, वह भी खोलने का काम, उसके भी दरवाजे खोलने का काम माननीय मोदी जी ने किया है। आज युवाओं के लिए 500 शीर्ष कंपनियों में जो केंद्र सरकार के सहयोग से ट्रेनिंग प्रोग्राम की व्यवस्था की गई है, इसके कारण हमारे नए युवाओं को न केवल उद्योगों में काम करने का अवसर मिलेगा, बल्कि ये युवा तैयार होकर पूरे विश्व के उद्योगों में छा जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा विद्या लक्ष्मी योजना की शुरुआत 1.5 लाख से ज्यादा स्टार्टअप, और उसमें से भी 1.5 लाख से ज्यादा स्टार्टअप में 117 स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन चुके हैं, अर्थात उनकी कुल पूंजी 8,500 करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुकी है, जो शून्य से शुरू करके 8,500 करोड़ का अगर सफर हो पाया है तो यह केवल और केवल माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की योजनाओं की देन है। उसी प्रकार यूनिफाइड पेंशन के माध्यम से सभी कर्मचारियों को 50% सुनिश्चित पेंशन, 8वें वेतन आयोग का गठन, घर के लिए ऋण सब्सिडी, एमएसएमई की गारंटी सीमा को 2.5 गुना बढ़ाना, मुद्रा योजना को 10 से 20 लाख करना, पीएम स्वनिधि योजना जैसे अनेक योजनाएं चलाकर हर नागरिक को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मदद करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। मोदी जी के शासनकाल में आज हमारे अखिलेश जी भी बोल रहे थे कि मेट्रो की लंबाई दुगुनी हो चुकी है, वह भी मानते हैं और यह पूरी दुनिया मानती है कि आज यह 10 साल से मोदी जी के कार्यों का नतीजा है कि मेट्रो में हम दुनिया में तीसरे सबसे बड़े मेट्रो लाइन नेटवर्क में सबसे तीसरे बड़े देश हो चुके हैं। हम लोगों ने आज दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज चिनाब बना है, 76,000 करोड़ से डीप वाटर मेगा पोर्ट हम बना रहे हैं, वरना श्रीलंका के पास से सामान आता था और फिर वह जहाज के माध्यम से भारत आता था बड़े जहाजों के लिए। आज भारत की विमान कंपनियां 1700 नए विमानों का ऑर्डर दी हैं। हमने हवाई अड्डों की संख्या न केवल दुगुना किया, बल्कि अब हम 120 नए और एयरपोर्ट उड़ान के तहत लेने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हरि अनंत हरि
कथा अनंता की तरह माननीय प्रधानमंत्री जी के विकास की योजनाएं हैं और सबका एक ही लक्ष्य है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना। यह देश सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती मना रहा है, जिन्होंने जूनागढ़ से लेकर हैदराबाद तक सभी राज्यों का भारत में विलय कराने का कार्य किया था। यह देश श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की भी 125वीं जयंती मना रहा है। नेहरू जी के कारण कश्मीर समस्या को रोक दिया गया था और कश्मीर समस्या जो नासूर बन के थी, उसी के कारण हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान हुआ। लेकिन धारा 370 को समाप्त करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने सरदार पटेल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं ये आप संसद का एक टीम होता है ट्रेनिंग प्रोग्राम प्राइड, उसके तहत मैं जम्मू कश्मीर असेंबली के नए चुने हुए विधायकों को संबोधित करने गया था। पूरे विधानसभा में जब हम लोगों ने अपनी बात रखी, उसके बाद प्रश्नोत्तर काल शुरू हुआ, एक भी विधायक ने यह नहीं पूछा कि धारा 370 क्यों खत्म किया गया। सबका एक ही प्रश्न था कि आप जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे रहे हैं। तो ये मोदी जी की सोच का नतीजा है कि जम्मू कश्मीर में भी किसी विधायक ने 370 के बारे में एक प्रश्न नहीं पूछा, लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी भी वहां जाके 370 रट रही थी और उसी का नतीजा हुआ कि जम्मू कश्मीर से कांग्रेस पार्टी आज बिल्कुल समाप्त वहां की जनता ने कर दिया। अध्यक्ष महोदय, हमारे नेता प्रतिपक्ष जी का चरित्र कैसा होना चाहिए, इसका उदाहरण अटल बिहारी वाजपेयी जी से सीखना चाहिए। जब नरसिम्हा राव जी के सरकार को संकट आया तो यूनाइटेड नेशंस में भारत सरकार के गुणगान करने का काम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। हम लोग खुद 2009 में इसी सदन के सदस्य थे। अगर हम लोगों ने भी बहुत बार डिसरप्शन किया, हम लोगों ने भी बहुत बार वेल में आए, लेकिन अगर वेल में भाजपा का एक सदस्य अगर आधी रेखा पार करता था तो स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी सीधे हम सबको बैठा देती थी कि तुम ट्रेजरी बेंच की तरफ, तुम सांसदों के ट्रेजरी बेंच की तरफ कैसे चले गए। आज तो न नेता प्रतिपक्ष को कुछ समझ में आता है, जो नेता प्रतिपक्ष को कुछ समझ में नहीं आएगा तो सांसदों को यह गरिमा नहीं समझ में आती है कि जो भी वेल में शोर भी करना है तो अपने साइड करें, ट्रेजरी बेंच साइड आना एक बहुत ही गलत काम है। तो आज सही अर्थों में नेता प्रतिपक्ष ने, वर्तमान नेता प्रतिपक्ष ने उन सभी नेता प्रतिपक्ष जो पहले रहे, उन सभी को, श्रेष्ठ आत्माओं को शर्मिंदा करने का काम किया है और इसके लिए राहुल गांधी जी को इस सदन में माफी मांगनी चाहिए। महामहिम राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देते हुए कि उन्होंने संयुक्त सत्र को संबोधित किया, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय। श्री चरणजीत सिंह चन्नी जी। परमादरणीय चेयरमैन साहब, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। चेयरमैन साहब, पिछले दिनों में हमारे बहुत ही नेक, ईमानदार अर्थशास्त्री, एजुकेशनिस्ट, हमारे माननीय साबका प्रधानमंत्री सरदार बहादुर सरदार मनमोहन सिंह जी हमें छोड़कर चले गए। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने 10 साल प्रधानमंत्री रहकर नेक नीति से, ईमानदारी से देश को चलाया। उनके राज्य में कोई लड़ाई नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं था, किसी को डर नहीं था और वो एक सच्चे सुच्चे ईमानदार नेता थे। और मैं सरकार से मांग करूंगा कि उनको भारत रत्न से नवाजा जाए। उनका हक बनता है, सरकार को पहले ही ये कर देना चाहिए था और उनका एक स्थल तैयार किया जाए, जैसे दूसरे प्रधानमंत्रियों को चाहे उसमें भी सरकार ने गलत किया। जब उनका संस्कार हुआ, मैं उस बात पे नहीं आता, लेकिन जो उनका हक बनता है उनको भारत रत्न दिया जाना चाहिए। माननीय चेयरमैन साहब, मुझे अफसोस है कि जो हिंदुओं के नाम पे राजनीति करने वाली जो सरकार है, वो हिंदुओं के महाकुंभ को भी सुरक्षित नहीं रख पाई, वहाँ सही प्रावधान नहीं कर पाई, वहाँ सही इंतजाम नहीं कर पाई, जिसके फलस्वरूप सैकड़ों श्रद्धालु वहाँ मारे गए। सो मैं सरकार से, बल्कि यहाँ
जिस दिन सबको श्रद्धांजलि दी गई उस दिन उन श्रद्धालुओं को भी श्रद्धांजलि देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं दी। दी गई बाद में दी होगी। दी गई। लेकिन मैं आपको बेनती करता हूं कि सरकार की गलती से सब कुछ हुआ है। सरकार को ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस माफी मांगनी चाहिए कि हम वहां ये इंतजाम नहीं कर पाए। मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं, मैं कुछ पंजाब और जलंधर के अपनी कंस्टिट्यूएंसी के मुद्दे के बारे में बात करना चाहता हूं। चेयरमैन साहब, गुरु रविदास जी की जयंती आ रही है। हर साल जयंती के ऊपर जलंधर से ट्रेन वाराणसी तक जाती हैं और सरकार उसकी प्रावधान करती। मैं सरकार से बेनती करूंगा कि 3 ट्रेनें जल्दी से जल्दी मुहैया कराई जाएं ताकि वहां वो जा सके श्रद्धांजलि। और जलंधर में कैंट के चारों तरफ एक रिंग रोड बननी है, वो मैं रक्षा मंत्री जी से बेनती करूंगा कि मैंने लिखकर भेजा है, आप उस पर गौर करें। सर, 2000 में जब अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने एक कमीशन सेटअप किया साबका चीफ जस्टिस चालिया जी की रहनुमाई में कि वो जो हमारा संविधान है इसमें क्या क्या तरमीमें होनी है उसको बताएंगे। तो उसमें एक रिपोर्ट ये भी है कि सिख, जैन, बुद्धिस्ट, इनको हिंदुओं के साथ अलग आइडेंटिटी माना जाए, ये सेपरेट आइडेंटिटी है। और आर्टिकल 25(2) में तरमीम करके हिंदुओं के साथ सिख, जैन और बुद्धिस्ट को भी लिखा जाए। तो मैं सरकार से बेनती करूंगा कि उस रिपोर्ट के आधार पर यह तरमीम लेके आई जाए। सीएम साहब, चेयरमैन साहब, कल राहुल गांधी जी बोले और कल देश ने देखा कि देश ने कल राहुल गांधी जी में एक ट्रू स्टेट्समैन को देखा है। और उनका जो कल का भाषण है, कल मुझे एक बीजेपी के मंत्री मिले, वो बोले हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं, हमारे पास मस्जिद और मंदिर के झगड़े का जवाब है। लेकिन अगर आप किसी मंत्री का नाम लेंगे तब वो मैंने नाम लिया नहीं सर, मैंने नाम लिया नहीं। फिर आप आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं है सर, मैं प्रशंसा कर रहा हूँ, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, प्रशंसा कर रहा हूँ। वही जवाब दे सकता है। क्या मैं उसको मंत्री पद से हटा दूं? नहीं, गौरव जी, मैं तो प्रशंसा कर रहा हूँ कि उन्होंने प्रशंसा की। लेकिन जवाब वही दे सकता है जब किसी का आप नाम लेंगे। तो इसलिए सर क्यों मेरा इससे भ्रम भी तो पैदा हो सकता है, भ्रम भी पैदा होगा। सर, राहुल गांधी पे 40 केस हैं आज इस सरकार ने डाले हुए, उसको तराशा जा रहा है, वो हीरा है और तराश हो रहा है। और सरकार हर बार, अब पार्लियामेंट में भी केस कर दिया, जहां जाते हैं वहां की सरकार से केस करवा दिया जाता है। लेकिन राहुल गांधी ने कल बताया कि उसकी सोच देश को आगे ले जाने की है और ये देश को हर समय पीछे लेकर जा रहे। बिना शिक्षा, एजुकेशन, कोई देश, कोई घर तरक्की नहीं कर सकता। हमारे देश की जो सरकारी यूनिवर्सिटियां हैं, जो सेंट्रल सरकार चलाती है, उसमें 25 से 30% हर यूनिवर्सिटी में टीचर नहीं है। पढ़ाई कैसे होगी? आज ये कह रहे थे 2 करोड़ नौकरियां देंगे और अब कह रहे हैं कि 2 लाख आएंगी। 10 साल में किसी नौजवान को नौकरी नहीं दी। सर, महंगाई का ये हाल है कि चूल्हा चलाने के लिए लोगों को तरसना पड़ता है और इतनी महंगाई हो गई है कि गरीब आदमी झेल नहीं सकता। गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। माननीय चेयरमैन साहब, पिछले सेशन में माननीय होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये लोग अंबेडकर 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 करते हैं। अगर सच में इतना परमात्मा का नाम लिया होता भगवान का तो स्वर्ग को पा लेते। मैं
आपको आपके माध्यम से इनको बताना चाहता हूं कि मैं ही नहीं, मेरे जैसे करोड़ों लोग वो हैं जिनके लिए अंबेडकर ही भगवान है। सर आप मेरे से बहस करोगे या फिर तो बात ही नहीं चलेगी। अम्बेडकर जी का नाम लिया तो आप उनको रोक रहे हैं। आप भी रोक रहे हो अम्बेडकर को बोलने से, क्या कैसे चलेगा? अम्बेडकर वो है जिसने मेरे जैसे करोड़ों नौजवानों को खड़ा किया है, देश को आरक्षण देकर गरीबों को ऊपर उठाया है, जिसने औरतों की वकालत की है। अम्बेडकर के नाम पे ऐसे शब्द बोलना ये निंदनीय है और माफी मांगनी चाहिए इन लोगों। और इससे उत्साहित होकर पंजाब में पिछले हफ्ते एक आदमी ने अंबेडकर साहब के बुत पे चढ़कर हथौड़े से उसको तोड़ा है। ये बीज ने नफरत का। ये आप जो ये आरोप लगा रहे हैं, जब देश का होम मिनिस्टर बोलेगा अंबेडकर के खिलाफ तो आम लोगों को तो उत्साहित होंगे ही। आम लोग क्यों नहीं बोलेंगे? जब आपका सबका सिपा सलार ही बोल रहा है तो आम लोगों का क्या हाल होगा? आप अम्बेडकर के ही नहीं, अम्बेडकर को संविधान के भी दुश्मन हो। सदस्य जी 1 मिनट रुक जाइए। आप ना अम्बेडकर को जानते हो। 115 चेयरमैन सर, निशिकांत जी, भारतीय जनता पार्टी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी माननीय सदस्य ब्रिजलाल जी के नेतृत्व में गई और अंबेडकर जी की प्रतिमा को नुकसान कांग्रेस के कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी ने किया है। ये अपनी गलती छुपाने के लिए हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। सर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनानी है तो ये बनाओ कि देश का होम मिनिस्टर अब वो आप बात क्यों गलत बोला अंबेडकर साहब के लिए, ये बताओ ना। आप और अपनी बात करें। सर मैं यह बात ही कर रहा हूं, आज तक माफी नहीं मांगा। सर मैं आपको बेनती करना चाहता हूं कि देश में नफरत का बीज बोया जा रहा है। दलितों को दबाने के लिए, मिनॉरिटी को दबाने के लिए, हर वर्ग को, किसानों को, किसान वहां अंबाला में धरने पे बैठे हैं, मरण वर्त पे बैठे हैं, कोई सुनवाई नहीं। अब कह रहे जी आप 14 तारीख जब सेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद आना। वादा कर गए हैं वो 5वें रोज का, किसी से सुन लिया होगा, दिन या 4 दिन की है। किसानों के साथ हर जगह नफरत का बीज बोया जा रहा है। लेकिन मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि ये आने वाली किताबों में लिखा जाएगा, ये आने वाली किताबों में लिखा जाएगा कि आपने राज किया और देश में नफरत फैलाई। माननीय चेयरमैन साहब, अब वादे देखो, कहते जी काला धन वापस लेकर आएंगे। सर हमारे पंजाब के ट्रांसपोर्टर 1914 में बहुत सारे कलकत्ता चले गए कि बंदरगाह पे काला धन आएगा, हमें काम मिलेगा। आज तक कोई काला धन नहीं आया। फिर कहते हैं जी 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, आज तक कुछ नहीं आया। सर अब बिहार के लिए बड़े बड़े अनाउंसमेंट कर दिए, यहां देना है कुछ। 2015 में बिहार के इलेक्शन थे, प्रधानमंत्री जी वहां गए। अब प्रधानमंत्री जी का बोलने का लहजा तो आपको पता ही है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। जिस तरीके से वो व्याख्या कर सकते हैं, लेक्चर कर सकते हैं, लोगों को जचा सकते हैं कोई बात, उससे ऊपर कुछ नहीं। वहां ऐसे खड़े हो गए और बोला कि आज ही पैकेज अनाउंस कर दूं क्या। बिहार के लोगों को बोल रहे रैली में। मुझे पता है 50,000 करोड़ से कुछ नहीं होगा, 60,000 कर दूं, अरे 70,000 कर दूं, 80,000 कर दूं, 90,000 कर दूं, 1.25 करोड़ रुपया आपको मिलेगा। 1.25 करोड़ लाख बिहार को मिलेगा। 1.25 लाख करोड़ सर, 1.25 लाख करोड़, 1.25 लाख आपने सही कर दिया। सर कितने मिले बिहार को? सर आपने मुझे सही कर दिया, आपको भी याद है, आपको बहुत अच्छा लगेगा दोबारा वो देखना एक बार वीडियो निकाल कर। कितने मिले बिहार को? तब फिर बिहार के ऊपर क्यों लगाने? जब और आज फिर आज आप तो यही कह रहे हैं ना बिहार के लिए दिया जा रहा है। आज फिर
बिहार को कह दिया बस अड्डा मिलेगा, आपको इतने पैसे मिलेंगे, इलेक्शन आ रहे, सब कुछ मिलेगा। मिलना मिलाना कुछ नहीं। फिर दोबारा तो क्यों झूठे वादे करके लोगों को हर समय ये पीछे लगाते हैं और हर समय लोगों के साथ धोखा होता है। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ। काइंडली कंक्लूड। सर अभी तो मैं शुरू हुआ हूँ। अरे आपका 12 मिनट हो चुके। सर मेरी बात सुनो। अब ये आरएसएस की हर समय बात स्पीकर भी बोलने वाले हैं आपके यहाँ। सर ये नेशनलिज्म की बात करते हैं। स्पीकर्स एंड योर टाइम इज लिमिटेड, ऑलरेडी यू हैव टेकन 12 मिनट्स। सर बोलने दोगे कि नहीं? बोलिए। सर जितना मैं बोल रहा हूँ उससे ज्यादा तो आप बोल लिए हैं। बोलने तो दो सर। सर बोलने दोगे कि नहीं मुझे? अब जब भी मैं बोलता हूँ आप जैसे महानुभाव को यहाँ लगा दिया जाता है, वो मुझे बोलने ही नहीं देते। ऐसा नहीं। आप तो मेरे वेल विशर हो ये कह रहे हैं। ये नहीं कह रहे थे। अरे अब वो खड़े हो गए हैं। अरे गांव तो बसने दो, तभी मांगते आएंगे ना यार। अभी पानी आया नहीं, मौजे खोल भी लिए आपने। बोलने तो दो मुझे। सर नेशनलिज्म की बात करते हैं, आरएसएस की हर समय बात। मैं पूछता हूं कभी आप बताओगे कि आपका देश की आजादी में क्या योगदान था? आरएसएस का क्या योगदान था? राष्ट्रपति के अभिभाषण पे बोल रहे हैं, आरएसएस की विचारधारा पे बोल रहे हैं। सर आप मुझे बोलने देंगे कि नहीं? मैं ये पूछना चाहता हूं। अब ये देखो सर, गौरव, ये पटेल साहब की बात कर रहे हैं। मेरे पास ये सर्टिफिकेट है कि पटेल साहब होम मिनिस्टर होते ही उन्होंने आरएसएस को बैन किया था। ये झूठ है बात बोले। और फिर 1966 में 1980 में आरएसएस के लिए ये कहा गया कि आरएसएस और जमाते इस्लाम कोई सरकारी कर्मचारी, कोई सिविल सर्वेंट उनका मेंबर नहीं बन सकता। लेकिन आज जुलाई 24 में सारी जुलाई 24 में बोलने दो सर। सर बोलने दो आप। अब बोलने दे रहा हूं, लेकिन एक बात है, अतीत की बात कर रहे हैं, कुछ पंजाब के वर्तमान की बात करेंगे। सर अब 24 में, जुलाई 24 में इन्होंने आरएसएस को ये कर दिया कि आरएसएस में कोई भी सरकारी कर्मचारी मेंबर बन सकता है। जब नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री थे, 62 के चाइना युद्ध के बाद 1963 में इंडिया गेट पर परेड में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को नेहरू जी ने शामिल कराया। ये नेहरू जी को गाली दें, ये नेहरू जी के नीतियों को गाली दें। आरएसएस गणतंत्र दिवस के परेड में शामिल हुआ था। आप माफी मांगिए देश से कि नेहरू ने गलती की। ये मेरे पास सर्टिफिकेट है, ये मेरे पास नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन है सर के जानकारी दे रहे हैं। आरएसएस जानकारी दिया। सर बोलने नहीं देना तो आपकी मर्जी है। नहीं, मैं आपको बोलने दे रहा हूं, लेकिन आप कंक्लूड करिए ना। आरएसएस का मेरे पास नोटिफिकेशन है कि आरएसएस को कहा गया था कि आप कभी भी राष्ट्रपति का सरकारी कर्मचारियों को अभिभाषण होता है, सरकार पे बोलिए सर। पंजाब अब ये अब वकालत तो आप ही कर रहे हो सारी उनकी सर। अब आप कह रहे राष्ट्रपति का नोटिफिकेशन होता है, सरकार करवाती है। जो भी राष्ट्रपति करते हैं पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पास होकर जाता है। आपका 15 मिनट हो गया। अब बोलने नहीं देना, 15 मिनट हो गया सर। अभी 24 में आरएसएस को ये किया गया कि कोई भी सिविल सर्वेंट उनका मेंबर बन सकता है। बट देयर आर अदर स्पीकर आल्सो फ्रॉम योर पार्टी। हाउ देयर इज ए टाइम ना, फिर ऑलरेडी की सीमा है, पहले ही 15 मिनट ले चुके हो। क्या करोगे आप? ये चन्नी पे पहले से लगा देते हो, आपके बोलना नहीं देना। तो सर मैं आपको निवेदन करूं कि मैं कह रहा था कि जुलाई 24 में सरकार ने ये कर दिया है कि आरएसएस का कोई भी अफसर देश का, कोई भी कर्मचारी आरएसएस का मेंबर बन सकता है। जो पहले नोटिस आपकी बात हो गई, बहुत बहुत धन्यवाद। लो सर। श्री पप्पू यादव जी, श्री पप्पू यादव जी सर तो मुझे और स्पीकर नहीं बोल पाएंगे। आपका समय जो है, अगर इनको बोलने देंगे तो फिर और आगे के जो स्पीकर आपके नहीं बोल पाएंगे। देयर आर नंबर ऑफ, आई थिंक आप 1 मिनट सर मुझे
एक अपनी बात कंक्लूड करिए। मुझे 2 मिनट दो। नहीं, अच्छा चलिए 1 मिनट। हेलो, अब 1 मिनट पे आ गए। ऐसे चलिए। सर पिछली बार यहाँ एक मेंबर साहब बोल रहे थे जिनको इस बार मंत्री ने बनाया, कौन है वो, ठाकुर साहब, तो वो उन्होंने महाभारत छेड़ ली। मुझे सचमुच लगा जैसे धृतराष्ट्र के हस्तिनापुर के दरबार में दुर्योधन खड़ा होकर बोल रहा। सर उन्होंने, जैसे दुर्योधन ने उस समय पांडवों पे, अर्जुन पे क्वेश्चन उठाया था कि जी इनकी जात और जन्म के बारे में, उन्होंने राहुल गांधी की वही उठाया। सर ये करोगे आप? ये चलेगा? ये देश में होगा? बहुत धन्यवाद। श्री पप्पू यादव, श्री पप्पू यादव जी हो गए। श्री पप्पू यादव, देश में नफरत फैलाने का काम आज ये लोग कर रहे हैं, और देश की अखंड एकता और अखंडता को इन लोगों से खतरा है। आज तक हिंदुओं को कभी खतरा नहीं हुआ 70 साल में, जब से ये सरकार आई है धन्यवाद। श्री पप्पू यादव जी, धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आभार प्रकट करता हूं और माननीय राष्ट्रपति महोदय जी के अभिभाषण पर बोलने के लिए खड़ा हूं। एक कहावत है हम लोग के बिहार में, सूप बाजत बाजत चलनियो बाजा, भाग गए वो, और हमाम में सब नंगे, हट डाल पर उल्लू बैठा, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। इन लोगों के कैरेक्टर को अभी हम बोलेंगे नहीं, वो चले गए तो इन लोगों को हम इतना से जानते हैं, क्या क्या बोलते हैं ये, क्या क्या करते हैं झारखंड में, और कहाँ इनका ननिहाल खानदान, सब हमको बोलना नहीं चाहिए। महोदय, हम शुरू करते हैं। बार बार चर्चा होती है बिहार की। प्रधानमंत्री जब से आए, अभी परसों प्रधानमंत्री जी ने कमला नगर में बोला कि हम इमरजेंसी में यहीं रहते थे, और जमुना का पानी हम पीते हैं डेली। आप रिकॉर्ड उठा के परसों के स्पीच का सुनिए कि हम जमुना का पानी पीते हैं, हम कमला नगर में ही रहते थे। प्रधानमंत्री जी हमारे कहाँ कहाँ रहते थे, कहाँ नहीं रहते थे, हमको आज तक समझ में नहीं आई कि गुजरात, जो गांधी और पटेल के गुजरात, जो मोहब्बत की नगरी और लोकतांत्रिक व्यवस्था में वसुधैव कुटुंबकम और मानवता के लिए जो प्रतीक थे, आज वो गुजरात गांधी से हटा करके, पटेल से हटाकर उनको नाथूराम गोडसे और नए गुजरात की परिभाषा से परिभाषित की गई, शुरुआत किया गया। और जब आए तो उन्होंने काला धन, जाली नोट, 15 लाख रुपया से शुरू की, 2 करोड़ नौकरी, नोटबंदी, जीएसटी, आप उठा करके देख लें, एक भी वादे पर दोबारा, इतना प्रधानमंत्री की नोटबंदी सबसे अहम घोषणा थी, आज तक दोबारा चर्चा इस सदन में नहीं हुई कि नोटबंदी से किनको बेनिफिट मिला, किनको नहीं मिला, नोटबंदी से देश और किसान और महिलाओं की कितनी क्षति हुई, व्यापारियों की कितनी क्षति हुई, और मजदूरों के हालात क्या हुए।